So today we are going to start with next chapter, vectors. तो चैप्टर नंबर 2 is mathematical method, जिसमें दो पार्ट है. One is vectors and the other is calculus. But we will be only going through vectors क्योंकि vectors is something that you need to revise now. So next chapter in the list is vectors. तो first of all, पहले चैप्टर में आपने देखा था anything that you can measure is called as physical quantity. जो कुछ भी मेजर कर सकते हो that was a physical quantity. Length, mass, time, velocity, acceleration. तो ये जो quantities you measure, you categorize it into two parts. इसके दो कैटेगरीज किए थे. तो फिजिकल क्वांटिटी के आपने दो कैटेगरी किए थे. उसमें से एक था फंडामेंटल. फर्स्ट चैप्टर की बात कर रहा हूं मैं. एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी categorized as either fundamental or derived. So physical quantities which do not depend on any other physical quantity for its measurement was called as fundamental. Derived physical quantities are those quantities which depend on other physical quantities for their measurement. अब ये जो quantities हैं, they can be further classified into either scalar or vector. Scalar physical quantity का मतलब होता है a physical quantity which requires just a number, only one number for its complete information, complete description. Example, the distance between 2 points is 5 meter. So what you need is a number. एक नंबर चाहिए और साथ में of course standard unit मतलब मीटर, right? टाइम जैसे 10 seconds, 10 seconds. Maybe for example, mass 15 kilogram. So such physical quantities जिसका complete description आपको सिर्फ एक नंबर से मिलता है, just a number. और ये units तो रहने ही वाले हैं. Units are always there. So when any physical quantity can be completely described with just a number, and these numbers are called as magnitudes. So if only magnitude is required to completely describe, to give full information about this quantity, such quantities are called as scalar quantities. So magnitude only, that's all you need. Then you have some physical quantities like force, like acceleration, like displacement, like velocity, for which आपको नंबर के साथ साथ डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा. Such physical quantities are called as vector quantities or vectors in short. So to describe, to give full information, you need magnitude plus direction. Okay. So any physical quantity can be categorized either as scalar or as a vector. Okay. अब हमारा इस चैप्टर में पूरा फोकस होगा वेक्टर्स पे. So we will see how to symbolically denote a vector, how to add vectors, how to subtract vectors, how to multiply vectors. So we'll start with basic. That is, first of all, let us see how to denote vectors. तो अगर आपको पता है वेक्टर्स को डिनोट करने के लिए सबसे पहले वेक्टर कहां से स्टार्ट हो रहा है. For example, I'll go with real life examples. Let us say हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है which is initially at point A. Then it goes from A to B in a given direction. तो A was starting point and B is end point. तो वेक्टर को डिनोट करने के लिए आप एक लाइन ड्रॉ करते हो, फिर इस पे एक एरोहेड दिखाते हो. So directed line segment, directed because you are also showing direction. So directed line segment is used to denote vector. जिस पॉइंट से वेक्टर स्टार्ट हुआ उसको बोलते हो टेल ऑफ अ वेक्टर, और जहां पे खत्म हुआ उसको बोलते हो हेड ऑफ अ वेक्टर. राइट, गुड. तो सिंबॉलिकली अ वेक्टर इज बेसिकली डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट. एक लाइन है और एक एरो है.
ये जो लाइन है, एरो नहीं, जो लाइन है, दिस लाइन गिव्स यू मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर एंड एरो गिव्स यू डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है एक ऑब्जेक्ट ए से सी पॉइंट पे गया, तो व्हाट आई विल डू इज, ये जो वेक्टर मैंने ड्रॉ किया है ए टू सी, इसका मैग्नीट्यूड पहले के कंपैरिजन में ज्यादा दिखाना पड़ेगा। सो ये जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द लाइन दैट यू आर यूजिंग टू डिनोट वेक्टर, इट गिव्स यू मैग्नीट्यूड। एग्जाम्पल यू आर मूविंग इन अ व्हीकल और आपका स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, और आपके साइड में से एक और व्हीकल आपको ओवरटेक करके गया, मतलब उसका स्पीड आपसे ज्यादा होगा, राइट। मान लो उसका 70 किलोमीटर पर आवर है, करेक्ट। तो दोनों को अगर कंपेयर करना है तो व्हाट यू विल डू, यू विल ड्रॉ वन लाइन फॉर योर ओन वेलोसिटी एंड पैरेलल लाइन, क्योंकि वो आपको पैरेलल जा रहा था पर उसका स्पीड क्या था, ज्यादा था, और दोनों का डायरेक्शन क्या था, सेम, राइट। सो द लेंथ of the vector gives you magnitude of the vector. Good. So simple है बहुत. So first of all you need to know how to graphically denote. तो कैसे करोगे? By using a directed line segment. अब when we do mathematics related to vector, तो हर बार तो हम ऐसा हर जगह पे directed line segment ड्रॉ नहीं कर सकते, तो हमको इसको कुछ नाम भी देना पड़ेगा। तो देयर आर टू मेथड्स, एक कहां से स्टार्ट हुआ, ए से, कहां खत्म हुआ, बी पे, तो यू राइट डाउन ए बी बार। तो ए से स्टार्ट हुआ, बी तक गया, इसलिए आप लिखते हो ए बी बार। सो दिस इज अ वेक्टर हुज टेल इज एट ए एंड हेड इज एट बी, ए टू बी। या फिर अगर आपको दो अल्फाबेट नहीं लिखने, कॉल दिस समथिंग, लेट अस से एक्स, तो इसके ऊपर लिख दो एक्स बार। तो bar here does not mean average, bar here means vector quantity। यहां पे अल्फाबेट के ऊपर जो आपने लाइन ड्रॉ की है, इट इज नॉट फॉर मीन वैल्यूज, क्योंकि मैथमेटिक्स में ऊपर बार मतलब मीन वैल्यूज, तो हियर यू आर नॉट यूजिंग मीन वैल्यूज, दिस इज नोटेशन फॉर वेक्टर्स। गुड। तो बेसिक्स पता होना चाहिए। Only thing that you need to know, there are some physical quantities, in fact majority of the physical quantities, उसका complete description देने के लिए magnitude और direction दोनों चाहिए, right? तो magnitude और direction, the physical quantities which need both magnitude and direction for complete description, those are called as vector quantities. Vectors are denoted by directed line segment. Starting point of a vector is tail and end point is called as head. Good. And symbol, it is AB bar or just X bar. Then there are different types of vectors. इसमें सबसे पहला टाइप इज नल वेक्टर। नल वेक्टर को और एक नाम है जीरो वेक्टर। So a vector with zero magnitude but given direction is called as null vector. Example, बहुत सारे example है। A particle at rest, अगर एक particle है जो rest पे है, a particle at rest, what is the velocity of this particle? Zero. So a particle at rest has zero velocity, so that velocity vector is zero vector, null vector. Magnitude है but direction नहीं है। Okay, so there are many examples of null vector. For example, if you know, मान लो एक rocket launch करना है, okay, you want to launch a rocket, and obviously when you want to launch a rocket, the rocket will be pointing vertically upwards. But हमने अभी तक इसको launch नहीं किया, मतलब velocity is zero, right? लेकिन जब भी जाएगा तो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो मतलब डायरेक्शन है बट स्पीड नहीं है, डायरेक्शन है बट स्पीड नहीं है, स्पीड इज जीरो बट डायरेक्शन इज समथिंग, तो इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी वेक्टर। अ वेक्टर विद जीरो मैग्नीट्यूड बट अ गिवन डायरेक्शन, और डिनोट करने के लिए जीरो के ऊपर बार लगा देते हो, राइट। अनदर एग्जांपल, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, पहले रेस्ट पे था,
तो velocity vector is 0. But now you have an object which is moving with constant velocity. Acceleration is 0. So acceleration vector of an object moving with constant velocity is 0 vector, right? For example, there are many examples. For example, you can generate your own example if you don't remember. No. If you talk about motion of minute hand or any hand of a clock, that is uniform circular motion, which is accelerated motion, and the direction of acceleration is towards the center, जिसको आप बोलते हो centripetal. Any object moving with constant velocity, 0 acceleration. Okay, so you can make your own example if you don't remember. It's a simple thing. Then next type of vector, resultant vector. Resultant vector, इसके लिए भी एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं. और व्हेन आई टेक दिस एग्जांपल, क्योंकि यहाँ पे मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा, तो यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर हम सिर्फ समझने के लिए डिस्प्लेसमेंट यूज कर रहे हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि ये रूल्स वेलोसिटी के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे या फोर्स के लिए नहीं होंगे. दे विल बी एप्लीकेबल फॉर एवरीथिंग. जस्ट फॉर एन एग्जांपल, लेट अस से ना, आपका एग्जांपल लेते हैं, because this is a thing that 99% of you do. Okay, you were sitting at home, you wanted to go at class. Okay, है ना, घर से निकलते ही क्लास पे जाना है. You want to go to class, but what you do is, ना पहले जाएंगे यहाँ पे, फिर थोड़ा टाइम पास किया, then you will go here, right? So घर से निकले, दोस्त को मिले, फिर क्लास पे आए, राइट? व्हाट इज रिजल्ट फाइनली? सो रिजल्ट इज फाइनली अ वेक्टर h2c, राइट? सो रिजल्टेंट वेक्टर, एज यू सी, मैं काम करता हूं, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. रिजल्टेंट वेक्टर इज अ सिंगल वेक्टर. ये जो वेक्टर है रिजल्टेंट वेक्टर, ये सिंगल वेक्टर है, right? What it is doing, it is giving you the same effect as that of two vectors combined together. So resultant vector of two or more vectors is a single vector which gives you same effect as that of all the vectors combined together. You go from H to F, then go from F to C. Ultimately you're going from H to C. तो जो resultant vector है, it is single vector. It is a single vector which gives you same effect as that of two or more vectors combined together. All the vectors combined together, and it starts from tail of first vector and ends at head of second vector. Good. तो इसका हम और डिटेल्ड एनालिसिस बाद में करेंगे. सिर्फ ये पता होना चाहिए रिजल्टेंट वेक्टर इज अ सिंगल वेक्टर. दैट इज ऑल यू नीड टू नो. Then you may come across equal vectors. Equal vectors मतलब क्या? Two vectors are said to be equal if, number one, magnitude of both the vectors should be same. Direction of both the vectors should be same. A बार और ये आ गया B बार. तो A बार और B बार ये इक्वल कब होंगे? जब दोनों का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विल बी सेम. ये है मैथमेटिकल definition of equal vectors. But when you are into physics, they should also represent same physical quantity. क्योंकि आप displacement equal to velocity नहीं लिख सकते हो. You cannot write down displacement equal to acceleration. So displacement equal to displacement, velocity equal to velocity. So equal vectors are those two vectors which have same magnitude, same direction, and they represent same physical quantity. Then you will come across
something called as opposite vectors or negative vectors. Okay, तो जब आप, well, by the way, इक्वल वेक्टर्स को पैरेलल वेक्टर्स भी बोलते हैं, राइट, बट कंडीशंस आर स्लाइटली डिफरेंट. पैरेलल वेक्टर्स में only direction should be same, magnitude may not be same, and they may not be representing same physical quantity. So that is the basic difference. Equal vectors are also parallel because they have the same direction. Additionally, they have same magnitude and they are representing same physical quantity. So equal or parallel difference है दोनों में, right? Then opposite or negative. देखो अपोजिट वेक्टर या नेगेटिव वेक्टर अगर आप बोलोगे तो सबसे पहले किसका अपोजिट, पहले एक वेक्टर पता होना चाहिए, मतलब एक वेक्टर गिवन होना चाहिए. सो लेट अस से वी आर गिवन एनी वेक्टर ए वेक्टर, तो नेगेटिव वेक्टर ऑफ अ गिवन वेक्टर ए बार इज अनदर वेक्टर बी बार विच हैज सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन. तो a bar equal to minus b bar, right? And the moment you write down a bar equal to minus b bar, मतलब आप बोल रहे हो कि मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, राइट? गुड. तो अगर हमारे पास ऐसा वेक्टर हुआ जिसका डायरेक्शन तो अपोजिट है बट मैग्नीट्यूड इज नॉट सेम, तो इस केस में यू विल हैव टू मल्टीप्लाई विथ सम स्केलर नंबर. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, आपका वेलोसिटी 50 था, आपको जो ओवरटेक करके गया उसका 100 था, मान लो डायरेक्शन क्या था, सेम. इफ योर वेलोसिटी इज v1 बार, देन द वन हु इज ओवरटेकिंग यू वेलोसिटी विल बी 2 टाइम्स ऑफ v1 बार, क्योंकि उसका 100 आपका 50, डायरेक्शन इज सेम. अब इमेजिन दैट the same vehicle is coming from opposite side. So in that case, if your velocity is v1, then v2 will be minus 2 times of v1, only because the direction of motion is opposite. So this is something you need to remember. Negative vector of a given vector. Negative vector of a given vector. A bar is another vector b bar, such that, इसको उल्टा भी लिख सकते हो, such that b bar equal to minus a bar, राइट? तो एक चीज याद रखना, अगर b बार a बार का नेगेटिव है तो a बार भी b बार का नेगेटिव है, राइट? then you have unit vector. Unit vector, normally unit vectors are used for directions. क्यों? बिकॉज ऑफ कोर्स अभी हम बार बार तो लिखते नहीं बैठेंगे. इमेजिन मुझे बताना है कि एक व्हीकल है जिसका स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है अलोंग एक्स एक्सिस, तो यू विल कीप ऑन राइटिंग लाइक दिस, कंसिडर व्हीकल ए विच इज मूविंग विथ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड अलोंग ईस्ट डायरेक्शन. तो डायरेक्शन स्पेसिफाई करने के लिए वी यूज अ वेक्टर, उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर. अब यूनिट वेक्टर एग्जैक्टली क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल लेट अस से वी हैव अ वेक्टर ए बार. चलो इसको भी रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझ लेंगे. ओके, यू आर स्टैंडिंग हियर, देयर इज पोस्ट ऑफिस हियर. ओके, वेल बाय द वे, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट पोस्ट ऑफिस, तो व्हेन यू ट्रैवल, फॉर एग्जाम्पल वहां पे एक किलोमीटर का मार्किंग होता है, दिस सिटी इज दिस मच किलोमीटर. हाँ, और सिटी समझ लो इतना बड़ा सिटी है. हाँ, यू आर हियर, तो कहाँ से 10 किलोमीटर? यहाँ से, सेंटर से, इस एंड से कहाँ से? सो डिस्टेंसेस आर नॉर्मली मेजर्ड फ्रॉम पोस्ट ऑफिसेस, बताना चाहिए. ओके, सो देन अब example, you are standing here and this is direction of post office. मान सकते हो इसको मैं a बार बोल रहा हूं, मान सकते हो आपकी पोजीशन से पोस्ट ऑफिस 8 किलोमीटर पे है, मान सकते हो, doesn't matter. So it is magnitude of a is 8 kilometer. Then someone comes and asks you
अरे मुझे वो XYZ जगह पे जाना है, XYZ गार्डन में जाना है, XYZ होटल पे जाना है, XYZ कॉलेज में जाना है, कैसे जाऊं? फिर आप बोलोगे यहाँ से 1 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ पोस्ट ऑफिस, दिस इज नॉर्मली व्हाट वी यूज, है ना, 1 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ पोस्ट ऑफिस। मतलब बेसिकली ऐसा है, आप लोग क्या कर रहे हो, आपने बताया 1 किलोमीटर, मतलब मैग्नीट्यूड इज 1, इन द डायरेक्शन ऑफ, मतलब पोस्ट ऑफिस यहाँ पर रेफरेंस डायरेक्शन हो गया। ओके, तो व्हेन मैग्नीट्यूड इज 1 एंड देयर इज सम रेफरेंस डायरेक्शन, सच वेक्टर्स आर कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर्स। अब हटा दो यहां से पोस्ट ऑफिस को, हमारा सिर्फ एक वेक्टर है ए बार। तो मुझे अगर यूनिट वेक्टर बनाना है, मतलब मुझे उसका इक्वेशन चाहिए, हाउ डू यू मेक यूनिट वेक्टर्स? नंबर 1, ये ए बार मतलब नॉर्मल वेक्टर है। नॉर्मल वेक्टर मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1 हो सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन यूनिट वेक्टर स्ट्रिक्टली विल हैव मैग्नीट्यूड 1। अगर वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर है तो 1 मीटर पर सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट वेक्टर है तो 1 मीटर, एक्सेलरेशन का यूनिट वेक्टर है तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फोर्स का यूनिट वेक्टर है तो 1 न्यूटन। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे ऑलवेज विल हैव मैग्नीट्यूड ऑफ 1। डिनोट करने के लिए दो नोटेशन, एक एक्चुअली 3 नोटेशन। एक तो ये जो ए बार है, सिर्फ बार हटा के कैप लगा दो। दूसरा नोटेशन स्मॉल ए और उसके ऊपर कैप। तीसरा नोटेशन यू ऑफ ए कैप, यू मतलब यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए, उसका कैप। तो यू कैन यूज एनी ऑफ दीज नोटेशंस। अब इमेजिन हमें चाहिए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बार। मैं मान लेता हूं ए बार का जो लेंथ है वो है 8 किलोमीटर, मैग्नीट्यूड इज 8, राइट? तो यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर विथ यूनिट मैग्नीट्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर। तो ये जो ए कैप है इसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए? ए बार। तो मैंने ए बार लिख दिया, लेकिन ए बार का मैग्नीट्यूड कितना था? 8। ए का कितना चाहिए? ए कैप का 1 चाहिए। तो एक काम करेंगे, इस वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लेंगे। मतलब व्हाट वी हैव डन इज, हमें सिर्फ डायरेक्शन से मतलब था, हमें ए बार की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर बनाना है। यूनिट वेक्टर मतलब उसका लेंथ मैग्नीट्यूड होना चाहिए 1, डायरेक्शन होना चाहिए ए बार का। तो when you write down a cap equal to a bar, look here, when you write down a bar equal to b bar, मतलब ए बार और बी बार का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम। तो व्हेन यू राइट ए कैप इक्वल टू ए बार, मतलब ए कैप और ए बार का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम, लेकिन मैग्नीट्यूड ए बार का कितना? 8। हमको ए कैप का कितना चाहिए? तो मैं इसको 8 से डिवाइड करूंगा, राइट? और फिर बार बार हम देखेंगे क्या कि ए बार का 8 है, बी बार का 10 है, ए को 8 से डिवाइड करो, बी को 10 से डिवाइड करो, नहीं। तो व्हाट वी विल डू इज, हम बोलेंगे ओके, ए बार उसको उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड गिव्स यू अ यूनिट वेक्टर। जिनको मैग्नीट्यूड कैसे डिनोट करते हैं मतलब उनको पता नहीं, उनके लिए वेक्टर्स हैव magnitude and direction. When you write, the moment you write x bar, ये x बार में मैग्नीट्यूड भी आ गया और डायरेक्शन भी आ गया। मुझे अगर सिर्फ डायरेक्शन बताना है तो मैं यूनिट वेक्टर का यूज करूंगा और मैं x के ऊपर कैप लिखूंगा। अगर मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है तो मैं या तो सिर्फ x लिख दूंगा, नो बार, नथिंग नथिंग, या फिर बार लिखा तो फिर मॉड के अंदर। तो इफ यू वांट टू शो जस्ट मैग्नीट्यूड, वेक्टर इनसाइड मॉड, और मच मोर सिंपलर, डू नॉट राइट बार ऑन द टॉप, सिर्फ ऐसा लिख दो x। So this is what it means. Then here also unit vector is vector divided by its own magnitude. So a bar by a, right? Good. Ab as you can see, a cap is equal to a bar by a. तो आप a बार को ऐसा भी लिख सकते हो, a कैप।
तो a bar can also be written as a cap. A cap, unit vector in the direction of a, is a vector divided by its magnitude. So a bar is a into a cap. ये याद रखना, ये बाद में काम में आएगा. यहाँ तक clear, right? Any other type of vector that you remember? Position vector, most important for us. तो position vector ये सबसे ज्यादा काम में आएगा. Position vector. So a vector which gives position of a particle or a point is called as position vector. इसका एक ही condition है, and that condition is, देखो for example, मैं थोड़ा डिटेल्स में जाऊंगा so that you understand why are we doing whatever we are doing. मतलब बेसिकली मुझे पोजीशन वेक्टर चाहिए, तो पोजीशन वेक्टर जब डिफाइन करेंगे तो ऐसे ही क्यों डिफाइन किया, उसके लिए पहले बेसिक. लेट अस टेक अ पॉइंट P समवेयर ओवर हियर. यहाँ पे P पॉइंट, एनी पॉइंट P. नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पॉइंट P ऑन द बोर्ड? पता है ऑन द बोर्ड है नो, राइट? तो पोजीशन बताने के लिए एक ओरिजिन सबसे पहले होना चाहिए. रेफरेंस पॉइंट मतलब कहां से मेजर कर रहे हो. तो यू नीड टू नो कि टू टेल पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट यू नीड टू हैव ओरिजिन. मतलब यू हैव टू फर्स्ट सेट द रेफरेंस ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो कहीं से तो मेजर करेंगे, तो ये आ गया आपका ओरिजिन. फिर आप बोलते हो x डायरेक्शन में उसका कोऑर्डिनेट है x, y में है y, तो x, y, राइट? सेम पॉइंट का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सम अदर कोऑर्डिनेट सिस्टम विल बी डिफरेंट. ऑफ कोर्स मैं अगर कहीं और से मेजर कर रहा हूं तो मुझे उसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कुछ और मिलेंगे. हो सकता है मैं o डैश ओरिजिन से रेफर कर रहा हूं, ये o था, 0 था, और ये 0 डैश है, o डैश है ओरिजिन. फॉर o डैश, for another coordinate system the same point will have x coordinate as x dash and y coordinate as y dash. तो ये आ गया x dash comma y dash, right? तो basically the idea here is आपको जब एक पॉइंट को लोकेट करना होता है then you first set origin, point of reference, कहां से मेजर कर रहे हैं हम लोग. Similar is true for any location on earth, है ना? हम अर्थ पे भी ऐसा ही करते हैं. कैसे करते हैं? सिंपल. So also, and I will go into little bit of extra things whenever required. Yeah, this is earth, okay? So let us say this is earth. Then अगर मुझे अर्थ पे कोई भी लोकेशन बताना है, लोकेशन, ओके? अभी तो जीपीएस यूज करते हो, तो जीपीएस में कुछ लिखे होते हैं 2-4 नंबर, है ना? फॉर एग्जाम्पल आर सिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक्स पता होना चाहिए. अ ग्रेट सर्कल, दिस ग्रेट सर्कल इज कॉल्ड एज इक्वेटर. ओह गुड, इक्वेटर, दिस इज इक्वेटर. वाई ग्रेट सर्कल? क्योंकि यहाँ पे मैं बाकी सर्कल भी ड्रॉ कर सकता हूं, लेकिन बाकी सर्कल्स का रेडियस या डायमीटर छोटा होगा. ये एक ऐसा सर्कल है जिसका डायमीटर सबसे ज्यादा है, इसको ग्रेट सर्कल बोलते हैं. तो दैट इज इक्वेटर हियर. तो दिस इज इक्वेटर. तो इक्वेटर, ओके. देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज, यू नो व्हाट इज दिस? लॉन्गिट्यूड. कहां से मेजर करते हो? नहीं, ओके, एनीवेज ठीक है. पोल से या फिर ग्रीनविच से जो लाइन पास होती है वहां से वी विल सी दैट, ओके. तो वी विल हैव अ लुक लेटर, बट यू शुड नो टू लोकेट एनी पॉइंट ऑन अर्थ यू यूज लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, राइट? तो लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, फॉर एग्जाम्पल, एंड यू शुड नो वी लिव इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. इक्वेटर का ऊपर मतलब नॉर्थ हेमिस्फीयर, नीचे मतलब साउथ हेमिस्फीयर. वी आर समवेयर ओवर हियर, लेट अस से, ओके. तो अब होगा क्या?
आप इक्वेटर से कितना ऊपर हो, कितना ऊपर हो मतलब नॉर्थ में हो, हाउ मेनी डिग्रीज टू द नॉर्थ, राइट? ओके, उसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड के लैटिट्यूड? लैटिट्यूड। ओके, देन to locate any point here you need two coordinates, longitude and latitude. तो longitude मतलब या तो towards north या तो towards south, longitude ना, कि latitude? पक्का? ओके गुड। तो इफ यू चेक, क्लास के बाद चेक करना गूगल पे या फिर मैप पे, विकिपीडिया पे, यू विल डेफिनेटली फाइंड 20 डिग्री समथिंग नॉर्थ, because our city, our country is in the northern hemisphere. फिर यहां से दो पार्ट, या तो ईस्ट या तो वेस्ट, एंड डेफिनेटली वी आर ईस्ट, इसलिए हमको ईस्टर्न कंट्रीज बोलते हैं, है ना? और यूएस और वो सब उसको बोलते हैं वेस्टर्न कंट्रीज। तो यू विल सी सम नंबर ईस्ट, राइट? तो द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज समवेयर एट इक्वेटर एंड दिस लाइन ग्रेट सर्कल। तो ये जहां पे इंटरसेक्ट करता है वहां से आप मेजर करते हो, मतलब दिस इज योर ओरिजिन। गुड, देन लेट अस गो टू पोजीशन वेक्टर। या आप पोजीशन बताओगे विथ कोऑर्डिनेट्स x, y, अगर पॉइंट प्लेन पे है, अगर पॉइंट स्फीयर पे है, जैसे अभी अर्थ का एग्जांपल लिया, तो उस केस में यू डोंट यूज एक्स वाई, यू यूज एंगल्स। उसको बोलते हैं स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, इसको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, राइट? व्हेन यू रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई, कार्टेशियन, और एक्स एंड वाई आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो एक्स वाई जेड जब यूज करोगे तो यू विल हैव परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। ये समझेगा, लगने वाला है वेक्टर में, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू। इफ यू tell in terms of spherical polar, which is out of scope of your syllabus, then you represent in terms of angle. Good. पर पोलर लगने वाला है हमको, तो या अदरवाइज व्हाट यू कैन डू इज, अगर आपको एक पॉइंट का पोजीशन बताना है, ओरिजिन से सीधा उस पॉइंट तक एक वेक्टर ड्रॉ कर दो। दिस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टिल द पॉइंट इज कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर। तो आप पोजीशन वेक्टर डिफाइन कैसे करोगे? अ वेक्टर विच गिव्स पोजीशन ऑफ अ पॉइंट एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, मतलब टेल शुड ऑलवेज बी एट ओरिजिन। अगर ये वेक्टर आपने कहीं और से स्टार्ट किया, इट इज नो मोर अ पोजीशन वेक्टर। तो याद रखना, पोजीशन वेक्टर के लिए मस्ट कंडीशन इज ओरिजिन, टेल शुड बी एट ओरिजिन। नॉर्मली पोजीशन वेक्टर को नॉर्मली स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, नॉर्मली आर बार, स्मॉल आर बार। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास एक से ज्यादा पॉइंट है, मतलब मे बी यू हैव 2 पॉइंट्स, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, तो आपको दो पोजीशन वेक्टर यहां पे लगने वाले हैं। तो अब ए का पोजीशन वेक्टर को आप स्मॉल ए बार और बी के पोजीशन वेक्टर को स्मॉल बी बार। सो कमिंग बैक हियर, सो यू सी मैंने यहाँ पे पहले ही कैपिटल लेटर यूज किया, क्योंकि स्मॉल लेटर आर रिजर्व फॉर पोजीशन वेक्टर्स। ओके, तो जब नॉर्मली किसी भी एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, यू कैन यूज एनी अल्फाबेट यू वांट। आपको लगता है मेरा नाम वी से स्टार्ट होता है तो वी बार बोल दो, डजंट मैटर, बट यू कैनॉट यूज स्मॉल लेटर्स, क्योंकि अगर आपने स्मॉल लेटर यूज किए उसका मतलब यू आर टेलिंग पोजीशन, पोजीशन वेक्टर। गुड, सो पोजीशन वेक्टर इज अ वेक्टर which gives position of a particle with respect to origin of a given coordinate system. Good, so if this much is clear, तो अब तक in the last half an hour we have developed basics। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर के टाइप क्या होते हैं, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। Now it is time to see what you can do with vectors, मतलब वेक्टर ऑपरेशंस। So वेक्टर ऑपरेशंस, what we can do। अभी अगर वेक्टर सीखना है तो उसका यूज है, इसके लिए सीखना है, तो वेक्टर ऑपरेशंस। नंबर 1, you can multiply a vector with a scalar। So
स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर, ओके, या तो फिर आप बोल सकते हो मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर विथ अ स्केलर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर विथ अ स्केलर। स्केलर मतलब नंबर, वेक्टर मतलब अलॉन्ग विथ डायरेक्शन। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल हमारे पास एक वेक्टर है ए बार, ए बार, देन what if I multiply this a bar with some number, just a number, scalar, उसको मैं बोल देता हूं m. So if I multiply a bar, a vector, with a scalar, I get a new vector. But this time the new vector so obtained has direction of a bar, मतलब a bar तो होगा ही multiplied with m. मैंने एग्जाम्पल ऑलरेडी देके रखा है. Your velocity is 50 km/h in each direction, then there's someone who is overtaking you, मतलब उसका डायरेक्शन भी होगा ईस्ट, क्योंकि ओवरटेक तो तभी बोलोगे ना जब डायरेक्शन सेम हो. बट द वेलोसिटी इज 100, मतलब उसका जो वेलोसिटी था v2 बार was 2 क्या है, नंबर है, was 2 times of v1 bar. So when you multiply a vector with a scalar, you get another vector whose magnitude is m into first vector ma and direction is of a bar. Clear? तो मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर विद अ स्केलर गिव्स यू न्यू वेक्टर, और इसको आप जो नाम चाहो दे दो, बी बार बोल दो, डजंट मैटर. So b bar is m a bar. Okay, one important thing, do you see both of these have same direction? Yes. मतलब these are parallel vectors? Yes. तो जब आपको ऐसा प्रूव करना हो कि ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर्स है, टू गिवन वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स, यू हैव टू शो वन वेक्टर इज इक्वल टू स्केलर इनटू अनदर वेक्टर, राइट? एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स, मेरे पास ए वेक्टर है, मान लो ए वेक्टर इज 2i कैप प्लस 3j कैप, या i कैप j कैप क्या है हम उस पर भी आएंगे, वेट अ मिनट, ओके, एंड b बार इज 4i कैप प्लस 6j कैप, एंड यू वांट टू शो कि b बार एंड a बार आर पैरेलल. एक काम करो, 2 कॉमन निकाल लो, और 2i कैप प्लस 3j कैप, तो यू विल हैव 2 into a bar. So b bar is 2a bar, मतलब b bar and a bar are parallel, but they are not equal. Why not equal? Magnitude. Okay, good, clear. Then what else you can do with vectors? You can add or subtract two vectors. So when you add or subtract vectors, addition or subtraction of vectors, subtraction. अब याद रखना, यहाँ पे जो हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन बोल रहे हैं, ये केस नंबर 1 है. इस केस में जो दो वेक्टर्स को आप ऐड कर रहे हो, these two vectors are either parallel, मतलब they have same direction, or they are anti-parallel, मतलब these two vectors are along the same straight line. मतलब हमारे पास यहाँ पे एक लाइन था, some reference line. ये जो आपके पास ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर और जो बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर, ये सेम लाइन को पैरेलल है, राइट? सो पैरेलल वेक्टर्स को आप अल्टरनेटिवली भी डिफाइन कर सकते हो. टू वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल और एंटी पैरेलल व्हेन दे आर पैरेलल टू द सेम स्ट्रेट लाइन. तो जब आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हो, उसके दो केसेस होते हैं. केस नंबर 1, व्हेन द टू वेक्टर्स are along the same straight line, right? This is the case. उल्टा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है. You may have this. Again, they are along the same straight line. They are along the same straight line. सिर्फ direction opposite है. Okay. So when you have two vectors in the same direction or opposite direction, you say they are along the same straight line. तो ये केस नंबर 1.
इफ यू वांट टू ऐड, चेक करो दोनों x डायरेक्शन में है क्या, दोनों y डायरेक्शन में है क्या, एक x में एक माइनस x में है क्या। ओके, तो फॉर दिस केस रूल इज सिंपल। तो ऐसे केसेस के लिए एडिशन का रूल बहुत सिंपल है, एक्सट्रीमली सिंपल। तो पहला केस तो इट इज वेरी सिंपल, क्योंकि जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं उसका रिजल्टेंट दोनों का एडिशन, तो यू जस्ट add a bar and b bar and you get new vector r bar, right? In this case the resultant r bar has the same direction of a bar and b bar but magnitude addition of a bar and b bar। है ना, थोड़ा डिफिकल्ट लगता है फिजिक्स का लैंग्वेज, सिंपल सिंपल कर देते हैं, because ultimately you have to understand what is happening। Okay, so this was your origin, this is let us say 3, this is let us say 10। you start walking from origin, first you go from origin to 3, this is a vector, a vector या b vector, जो भी बोलना हो doesn't matter, it's a और b, क्या फर्क पड़ता है। then you go from 3 to 10, this is b vector, okay, some vector b vector। what is the end result? 0 to 10, मतलब आपने क्या किया, आपने a बार और b बार को डायरेक्टली ऐड कर दिया, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है r बार, इसका डायरेक्शन a बार और b बार का, क्योंकि a बार का डायरेक्शन क्या था, टुवर्ड्स पॉजिटिव x, और b बार का क्या है, टुवर्ड्स पॉजिटिव x। तो रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ these two vectors which are in the same direction has the same direction, so resultant r bar has direction of a bar or b bar। what is the magnitude? magnitude of r is just a plus b, magnitude of a plus magnitude of b। good। दूसरा केस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन सेकेंड केस जब दो एंटी पैरेलल वेक्टर्स हो, उस केस में रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं? बड़ा वेक्टर कौन सा, वो देखो, a बार माइनस b बार, खत्म। दिस इज व्हाट यू डू, मतलब व्हाट यू आर डूइंग हियर इज यू आर सब्ट्रैक्टिंग स्मॉलर वेक्टर फ्रॉम बिगर वेक्टर, सो द रिजल्टेंट हैज सेम डायरेक्शन ऑफ बिगर वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड डिफरेंस ऑफ द टू। यहां पे क्या था, यहां पे रिजल्टेंट है सेम डायरेक्शन ऑफ इधर ए बार और बी बार एंड रिजल्टेंट इज ए प्लस बी। यहां पे रिजल्टेंट कैसे निकाला, बड़े में से छोटा माइनस किया, मतलब रिजल्टेंट है डायरेक्शन ऑफ बिगर वेक्टर ना। बहुत एक फेमस एग्जांपल आता है ड्रंकर्ड का, है ना, वेरी फेमस एग्जांपल। देयर इज अ ड्रंकर्ड, there is someone who is drinking, तो इसके when he starts walking the sense of motion is completely random, okay, और हमने ऊपर से रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि वन डायमेंशन में जाना है, right? so he takes 3 steps ahead and then 1 step behind। what is resultant? 2 steps in the forward direction, so resultant is 2 steps in the फॉरवर्ड डायरेक्शन। इस पे क्वेश्चन आता है, आया है, और 11th वालों को पता होगा, हमने सॉल्व किया था, we have solved this। so there is a hole at 21 meter, a drunkard takes 5 steps forward and 3 steps backward, after how much time the drunkard will fall into that hole? each step is 1 meter long and each step 1 second, each step takes 1 second, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, if I am not wrong। so we will solve such questions। so okay, then if this is clear, then we can move ahead to second type of addition or subtraction। यहाँ पे addition of two vectors along the same line था, और जब मैंने रिजल्टेंट वेक्टर बताया तो addition of two vectors which were not along the same line, right? so when you want to add two vectors which are not along the same line, then there are two rules, triangle law।
triangle law of vector addition and parallelogram law of vector addition. So in reality there is only one rule. I'll tell you how. एक ही रूल है, दूसरा नहीं है, दूसरा बना के दे दिया आपको, ठीक है. Anyways, so the idea here is, imagine I have a vector starting from O to A. Let me give this name as A bar. Then I have another vector which starts from A and ends at B. So you have another vector starting from A ending at B. तो आपको अभी already पता है, you already know resultant is a vector starting from O and ending at B. मतलब OB bar is a resultant vector, इसको मैं R bar बोलता हूँ, right? करेक्ट. अब इसको सिर्फ बोलने का तरीका अलग है. हमने पहले क्या बोला था, रिजल्टेंट वेक्टर इज अ सिंगल वेक्टर, ओके, which gives you same effect as that of all the vectors combined together. अब all नहीं बोलते थे, अब 2 ही वेक्टर है strictly, right? So resultant vector of is a single vector which gives combined effect of all the vectors together. वहां पे रिजल्टेंट वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट था टेल ऑफ फर्स्ट एंड एंड पॉइंट था हेड ऑफ सेकेंड. वहां पे 2 से ज्यादा वेक्टर्स हो सकते थे. ट्रायंगल लॉ में, अभी ट्रायंगल है तो 3 ही साइड होंगे, राइट? तो ट्रायंगल लॉ में आपके पास 2 ही वेक्टर है. रिमेंबर दिस, यू हैव 2 वेक्टर्स, ओके. नाउ हाउ टू स्टेट दिस, थोड़ा चेंज होगा, वर्ड्स विल change slightly now. The resultant vector of 2 vectors taken in order. Okay, क्यों taken in order? जहां पे पहला खत्म हुआ वहां पे दूसरा स्टार्ट हुआ. The resultant vector of 2 vectors, अब taken in order के बीच में कुछ और डालूंगा. The resultant of 2 vectors of the same type, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी सेम होनी चाहिए तब ऐड होगा, राइट? So resultant vector of 2 vectors of the same type representing 2 adjacent side of incomplete triangle. क्योंकि triangle complete है क्या? नहीं. Taken in order. Then the resultant is given by third side of this incomplete triangle, which starts from tail of first and ends at head of second. So this is how you define triangle law. The resultant vector, कैसे डिफाइन करोगे इसको? The resultant of 2 vectors of the same type, क्योंकि दोनों डिस्प्लेसमेंट या दोनों वेलोसिटी या दोनों एक्सेलरेशन. The resultant of 2 vectors of the same type representing adjacent sides of incomplete triangle taken in order, then the resultant vector is the third side of अभी बोले तो कंप्लीट हो गया ना, थर्ड साइड starting from tail of first vector and ending at head of second. ये हो गया ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. अब पैरेललोग्राम लॉ में there is only one change. Here what they do is, ये जो B वेक्टर है जहां पे A खत्म हुआ वहां से नहीं, दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट होते हैं. तो पैरेललोग्राम भी इनकम्प्लीट है, मतलब पहले तो इसको भी करना पड़ेगा कंप्लीट. तो ये पैरेललोग्राम इज आल्सो इनकम्प्लीट, तो यू हैव टू फर्स्ट कंप्लीट दिस. So this vector B bar and A bar both start from the same. So according to parallelogram law of vector addition, 2 vectors of the same type are representing adjacent sides of incomplete parallelogram. तो पहले कंप्लीट कर लो, इसको कंप्लीट कर लो, ये हो गया कंप्लीट, क्योंकि रिजल्टेंट समझेगा व्हाट इज रिजल्टेंट. तो ये हो गया आपका कंप्लीट. सो इफ टू वेक्टर्स ऑफ द सेम टाइप आर रिप्रेजेंटिंग एडजेसेंट साइड्स ऑफ इनकम्प्लीट पैरेललोग्राम, then the resultant is
डायगोनल, लेकिन दो डायगोनल है, एक ये और एक ये, तो द रिजल्टेंट इज अ डायगोनल स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम कॉमन पॉइंट। खत्म। तो ये आ गया रिजल्टेंट आपका आर बार। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, वहां पे टेकन इन ऑर्डर था, यहाँ पे एडजेसेंट है। वहां पे जो रिजल्टेंट था वो पहले वेक्टर के टेल से स्टार्ट होकर दूसरे वेक्टर के हेड पे खत्म होता है। यहाँ पे जो रिजल्टेंट है वो दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट होता है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट तीनों वेक्टर का सेम है, राइट। नाउ एज आई टोल्ड यू कि देयर आर एक्चुअली ओनली टू रूल्स, ओनली वन, नॉट इवन टू। ये पैरेललोग्राम वगैरह कुछ नहीं है, ओके दोनों एक ही है। हाउ कम, यू विल सी। अब इमेजिन बेसिक्स और आपके बुक में एग्जैक्टली आई एम टेलिंग यू, जहां जहां पे ट्रायंगल लॉ बताया है वहां पे सिर्फ ट्रायंगल लॉ को स्टेट करके छोड़ दिया, क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर है। वेक्टर क्या होता है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ना वहां पे मैग्नीट्यूड का इक्वेशन फाइंड किया होगा, ना वहां पे डायरेक्शन फाइंड की होगी। सिर्फ कहां फाइंड करते हैं? पैरेललोग्राम में। You will see any book you take, they will only find out magnitude of resultant in case of parallelogram. क्यों ऐसा बाइसिंग क्यों किया उन्होंने? Because this is just for the sake of statement. Triangle law ऐसा कुछ है नहीं, एक ही है दोनों। अब if you remember basics of vector, what is a vector? Any quantity having direction and magnitude. वेक्टर चेंज कब होगा? या तो आप मैग्नीट्यूड चेंज करो या फिर ओके मतलब आई हैव द लिबर्टी, फ्रीडम टू टेक इट एनीवेयर आई वांट, कहीं भी घुमा सकता हूं, प्रोवाइडेड मैं डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा हूं, मैं मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं किया। क्या मैं इसको कहीं पे भी लेके गया तो वो एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, ओके। मैग्नीट्यूड चेंज किया नहीं, लेंथ चेंज किया नहीं, तो पहले कहां था? यहाँ पे, फिर यहां से यहां पे उठा के रख दो, क्या फर्क पड़ा? नथिंग। Just move one side to this common point. Any difference? No, because you have not changed direction, you have not changed magnitude. That is why I say कोई दो रूल नहीं है, एक ही है। सिर्फ वहां पे जहां पहला वेक्टर खत्म होता है वहां से दूसरा स्टार्ट होता है, इसलिए वो दो साइड्स ऑफ ट्रायंगल है टेकन इन ऑर्डर। एक खत्म हुआ, वहां से दूसरा स्टार्ट हुआ। पैरेललोग्राम में दो वेक्टर है जो एडजेसेंट, मतलब दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। सो इट इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्टेटमेंट, बाकी कोई अलग डिफरेंस है नहीं। तो अब इसका मतलब क्या? अगर ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ अलग अलग नहीं है, सेम है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला जो पैरेललोग्राम लॉ में बनेगा वही एज इट इज एप्लीकेबल होगा ट्रायंगल के लिए। तो दैट इज व्हाई हम पैरेललोग्राम लॉ के लिए और ट्रायंगल लॉ के लिए अलग अलग से फॉर्मूला डिराइव नहीं करेंगे, सेम। गुड। देन अब द पॉइंट हियर इज कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो यू वांट टू फाइंड आउट आर, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ आर एंड डायरेक्शन ऑफ आर। तो जब हम बोलते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ आर निकालना है, किसके टर्म्स में निकालना है? ए और बी, क्योंकि आपको पता क्या था? दो वेक्टर्स। आपको क्या पता था? ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो यू वांट टू फाइंड आउट आर इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। दूसरा डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब एंगल, और एंगल हम नॉर्मली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस फाइंड करते हैं। यहाँ पे एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर है? ए बार। तो नॉर्मली ये इसको मैं बोल दूंगा अल्फा। तो आई वॉन्ट टू फाइंड आउट अल्फा, इफ आई नो अल्फा आई नो डायरेक्शन। और यहाँ पे भी फिर कंफ्यूजन होता है, ऐसे कैसे एंगल ने डायरेक्शन दे दिया? देता है एंगल डायरेक्शन, कैसे देता है? एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये पता होगा, नॉर्मली एक्स एक्सिस टेकन टू बी ईस्ट, माइनस एक्स इज वेस्ट, नॉर्थ is plus y and south is minus y. अगर मैंने बोला कि I am walking at 45 degree with respect to east, I am walking at 45 degree with respect to east. This is 45 from east, this is 45 from north, right? Correct?
तो ये हो गया नॉर्थ ईस्ट। तो एंगल ने क्या बताया? डायरेक्शन। हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है तो नॉर्थ ईस्टर्न क्यों बोलते हो? नॉर्थ ईस्ट में है ना, योर 7 sister states you normally call north eastern because they are north east, they are into north and they are also into east, right? और ये पंजाब साइड का आप बोलते हो इसको नॉर्थ वेस्ट because they are north but west of the country, right? Then you go to south and you say South Indian states. Good. So directions you should know. Angles are capable of giving you directions first of all. अब let us go to this derivation of magnitude first. What you should know is resultant vector का magnitude in terms of a and b होना चाहिए, क्योंकि normally हमको a और b पता होता है, right? And the problem here, यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम है, एक भी राइट एंगल ट्राइंगल नहीं। राइट एंगल ट्राइंगल होता तो फिर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेते, नहीं है तो जबरदस्ती बनाओ, इसको एक्सटेंड करो, extend this line, then let us call this point here as AO, AB हो गया, इसको C बोल देते हैं। Then drop a perpendicular from C on extended OA. Okay, let us call this as D, and this angle is 90. अब ये एंगल अल्फा रिजल्टेंट का है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, और ये एंगल थीटा ये एंगल है ए बार और बी बार में। तो थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए बार एंड बी बार, वेयर एज अल्फा इज एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड ए बार, मतलब रिजल्टेंट का विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। तो ये आपको पता होना चाहिए, दिस इज समथिंग यू नीड टू नो। ओके, देन यू नीड टू नो करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। ये थीटा तो ये एंगल भी थीटा, और ये बी बार है तो दिस इज ऑल्सो बी बार, ये ए बार है तो दिस इज ऑल्सो ए बार। वेरी गुड। नाउ इफ यू टेक दिस ट्राइंगल ODC, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो फ्रॉम triangle ODC, what you have is OC square equal to OD square plus DC square, OD square plus DC square। OC तो था रिजल्टेंट, R बार तो R बार का स्क्वायर होता है R स्क्वायर, OD इज OA प्लस AD, OA प्लस AD का स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। अब इसको आप a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर से एक्सपैंड कर लो, R स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी नॉट रूट, OA स्क्वायर प्लस 2OA AD प्लस AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। Okay, something interesting, AD square BC square AC square. So AD square plus DC square is hypotenuse of ADC triangle का square, so it is AC square. So you will have this term here as AC square, और अगर आपके observations are good, and this is what you need for JEE NEET, ADDC ADDC, so AC square, ADDC AC square। तो ऐसा देख के समझ आना चाहिए था, दिस इज हाइपोटेन्यूज AC, तो R square equal to OA, okay, OA, but OA is A vector, तो A vector का स्क्वायर प्लस 2OA is A vector again, AD पता नहीं, फाइंड करेंगे बाद में, AD को ऐसे रखते हैं, दिस इज AC square। ओके, so R square equal to A square plus 2A AD, और AC B बार उसका स्क्वायर B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब सिर्फ A to D ये फाइंड करना रह गया, तो AD is adjacent to थीटा, तो cos थीटा यूज करना पड़ेगा, cos थीटा is adjacent side AD upon
hypotenuse AC. Very good. So you will have AD equal to AC cos theta, but AC is B, तो B cos theta. तो ये आपको मिल गया यहाँ पे R square equal to A square plus 2AB cos theta plus B square. तो आपको मिल जाएगा सिंपल सिंपल R equal to under root of B square plus 2AB cos theta. So this is resultant of the two vectors in terms of first vector and second vector, where theta is angle between two vectors, not angle of resultant with respect to x-axis. This is angle between two vectors. तो यहाँ गड़बड़ मत कर देना, क्योंकि sometimes they intentionally tell you resultant makes an angle of 30 degree with respect to x-axis. तो थीटा ले लिया 30, गए काम से. Resultant नहीं, A और B. Good. Then what is left is direction, and direction you get from tan of alpha, not theta. Resultant का क्या angle है? Alpha, not theta. Resultant का direction with respect to x, B का नहीं, resultant का. Okay, good. Now एक चीज याद रखना, जब भी डायरेक्शन पूछा हो ऑलवेज टेक tan. ओके, तो अगर मुझे डायरेक्शन पता करना है, फॉर एग्जांपल ये रिजल्टेंट वेक्टर था R और यहाँ पे आपके पास है ये हॉरिजॉन्टल सम x एक्सिस, दिस एंगल वाज अल्फा और A बार भी इस डायरेक्शन में है, वो मैं उस पर बाद में आऊंगा. वैसे आपको बता रहा हूँ कि tan क्यों लेना. यू सी why to take tan, हाँ बहुत बेसिक है. And if you want to do mechanics well, you need to know this. इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा था ये कि if you want to find out direction, why do you take tan? Why you don't take cos or sin? Rejected because of this reason. Okay, when I went for interview, मुझसे पहले का जो कैंडिडेट था, मतलब it is just like you are sitting, all of us has to sit there and one by one you go and present, because when you get interview for teaching job, they look at everything. What is the body language? Do you make eye contact? Do you speak fluently? Can you explain the concept? तो एक टीचर ने पूछा why 10 and the answer came ऐसा ही होता है. वो ऐसा ही नहीं होता है. फिर वो अगर ऐसा ही होता है तो फिर ऐसा ही साइन क्यों लिया? Why did you take sign? You see, there is a reason behind it. You cannot just say ऐसा ही होता है, फिर वो बोलेंगे वैसे ही जाओ. Good. So you see, ये जो कंपोनेंट था ये x कंपोनेंट था, ये जो कंपोनेंट है ये y कंपोनेंट है. अगर मैं साइन लेता, अगर मैं साइन अल्फा लू, साइन अल्फा इज अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज y बाय r. सबसे पहले तो r पता नहीं है. दूसरा, अगर मैं cos लेता हूं x बाय r, तो साइन सिर्फ y को रिप्रेजेंट करता है, cos सिर्फ x को रिप्रेजेंट करता है. अगर मैं tan लेता हूं, you see both components are represented here in tan. क्योंकि एंगल के लिए मैंने अभी बताया ईस्ट से 45, मतलब x से 45, तो y से भी 45. तो x और y बोथ कंपोनेंट्स आर रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई डायरेक्शन, इसलिए tan लेना पड़ता है. तो वो ऐसा ही नहीं होता है, ऐसे ही. ओके, ऑल राइट. देन इफ यू टेक tan ऑफ अल्फा, जस्ट फोकस ऑन दिस ट्राइंगल ओवर हियर, राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि tan cos sin के लिए राइट एंगल चाहिए, क्योंकि हाइपोटेन्यूज है तो फिर राइट एंगल तो चाहिए. तो यू आर फोकसिंग ऑन ODC. इफ आई टेक tan अल्फा, अपोजिट साइड मतलब DC, एडजेसेंट साइड OD, तो इट इज DC अपॉन OD. तो इट इज DC अपॉन OD, DC by OD. But OD is OA plus AD, so it is OA plus AD. And then of course आपको OA पता है, OA is A, AD भी फाइंड किया,
b cos थीटा, तो इट इज a प्लस b cos थीटा। अब डीसी अगर चाहिए तो टेक साइन, तो इफ यू टेक साइन ऑफ थीटा इज अपोजिट साइड डीसी अपॉन हाइपोटेन्यूज AC, मतलब DC इक्वल टू AC साइन थीटा, तो DC इक्वल टू AC साइन थीटा। पर ये AC था, B वेक्टर, ये B था ना AC, तो ये आ गया B साइन थीटा। तो यू विल हैव tan अल्फा एस B साइन थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। दिस इज हाउ यू फाइंड आउट tan ऑफ डायरेक्शन। अल्फा चाहिए तो tan इनवर्स ऑफ दिस, tan inverse of b sin theta upon a plus b cos theta. Good. Just a small assignment that I will want you to do is, वैसे ही आप बीटा फाइंड करो. Okay, you can find with respect to b vector also. So that will be an assignment that you're supposed to do. Good. Now, so far हमने दो वेक्टर्स को ऐड भी कर लिया, सेम डायरेक्शन में थे, अपोजिट में थे, या फिर इंक्लाइन टू ईच अदर थे। इंक्लाइन टू ईच अदर होंगे तो ट्राइंगल लॉ या फिर पैरेललोग्राम लॉ, हमने मैग्नीट्यूड भी फाइंड किया और हमको अब डायरेक्शन भी पता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। सो वेक्टर एडिशन, वेक्टर का एडिशन, इट फॉलोज फ्यू प्रॉपर्टीज। उसमें से पहला प्रॉपर्टी है वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, मतलब आप ए बार को बी बार में ऐड करो या फिर बी बार को ए बार में ऐड करो, ये एक ही चीज है। सो ए बार प्लस बी बार और बी बार प्लस ए बार विल गिव यू सेम रिजल्टेंट। एग्जाम्पल, सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक दिस एज ए बार, ये आ गया ए बार। लेट अस टेक बी बार, सो दिस इज सम वेक्टर बी बार, बी बार। Let us say ये origin है O, and here I'll give some name P and Q, just not to get confused. तो ये P और Q है, ओके, और ये B वेक्टर है, तो B वेक्टर है तो वेक्टर है, ओके। और इसको मैं कॉपी करके और एक जगह पे रख देता हूँ। I will use this again later. Let's put it over here. अगर आप A बार प्लस B बार करते हो, what is resultant starting from tail of A ending at good, so it is this vector which is r bar। तो ये जो r bar है, मैं इसको r1 बोलता हूं। so here resultant r1 bar is a bar plus b bar। imagine if I basically add b bar plus a bar, तो a bar plus b bar करना होता है तो a बार जहां खत्म हो वहां से b बार को चालू होना चाहिए। वैसे b बार प्लस a बार करोगे तो जहां b बार खत्म हो वहां से a बार स्टार्ट होना चाहिए। मतलब बेसिकली व्हाट आई विल डू इज, ये जो वेक्टर है a बार, इसको शिफ्ट करना पड़ेगा। तो मैं पहले तो b को शिफ्ट कर लेता हूं, आई पुट इट ओवर हियर, देन आई शिफ्ट दिस वन। b बार जहां खत्म हुआ वहां से a बार को स्टार्ट होना चाहिए। याद रखना ये पॉइंट था, नहीं वो नहीं था, नहीं था, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, क्योंकि मैंने बी को भी शिफ्ट किया था, वो ओ ही पॉइंट था, इट वाज ओ। यू डोंट रिमेम्बर, ओके, नो इश्यूज। इफ यू डोंट रिमेम्बर मैं वापस बता देता हूं, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, इट्स ओके इफ यू डोंट रिमेम्बर। तो ऐसा है, पे अटेंशन हियर, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज्ड। मैंने बोला कि पहले बी बार, तो बी बार पहले, तो इस बी बार को मैंने यहां पे शिफ्ट किया, तो ओ है करेक्ट। फिर हमने ए को शिफ्ट किया, कहां पे शिफ्ट किया, जहां पे बी बार खत्म हो रहा है, करेक्ट। तो अब जब बी बार में आप ए बार ऐड करोगे, बी बार प्लस ए बार करोगे, तो पहले बी बार लिखा है, मतलब रिजल्टेंट टू स्टार्ट फ्रॉम टेल ऑफ बी एंड एंड एट हेड ऑफ ए। वेरी गुड, हेड ऑफ ए, यहां खत्म होगा। इसको मैं बोल देता हूं R2 बार। आपने जब ए बार प्लस बी बार किया
उस केस में भी रिजल्टेंट स्टार्ट हुआ ओ पे, खत्म हुआ क्यू पे। जब आपने बी बार प्लस ए बार किया, उस केस में भी रिजल्टेंट स्टार्ट हुआ ओ पे और खत्म हुआ क्यू पे। मतलब इन शॉर्ट व्हाट यू हैव is the same vector, right? It's the same vector, r1 बार और r2 बार सेम है। मतलब a बार प्लस b बार या b बार प्लस a बार दे आर सेम, इसलिए इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव। So commutative मतलब doesn't matter if you write a bar first or b bar first, the addition end result is the same. Property number 2, associative। associative में आप a bar, आपके पास 3 वेक्टर है, so you have 3 vectors. Now there are different ways of adding. If you have 3 numbers 2 3 4, तो आप क्या कर सकते हो, पहले 3 और 4 को ऐड करोगे 7, फिर उसमें 2 ऐड करोगे 9, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, पहले 2 नंबर को ऐड करो एंड देन यू ऐड थर्ड नंबर 2 3 5 5 प्लस 4 अगेन 9, राइट? तो वेक्टर्स में भी चलता है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव मतलब किसी भी दो को एसोसिएट करो, ए प्लस बी पहले लिखो, देन ऐड सी, और ए को अलग कर दो, बी और सी को ऐड करो, रिजल्टेंट बनाओ, देन पुट इट विद ए। No issues, resultant will be the same. Again prove it, you have to prove this. Then let's take this vector as, कौन सा वेक्टर, a bar, तो ये आ गया a bar। Then you have another vector, some vector b, I'll take some other vector b, this is another vector b, this is b vector, and then you take another vector c, some vector c। आप बोलोगे ऐसा क्यों ड्रॉ कर रहे हो, और मैंने पहले ही बताया a बार प्लस b बार मतलब जहां पे a खत्म हो वहां से b स्टार्ट होगा, b बार प्लस c बार मतलब जहां पे b खत्म हो वहां से c स्टार्ट होगा। दैट इज व्हाई आई एम डूइंग लाइक दिस, एंड दिस इज ऑफ कोर्स a बार। आपको पता ही है, यू नो, इफ आई पुट दिस पॉइंट एज o p q and s, so you already know resultant will start from O and end at S. Okay, good। यही तो प्रूव करना है कि दोनों केसेस में लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में रिजल्टेंट स्टार्ट फ्रॉम O and ends at S। तो कैसे करेंगे, अब अकॉर्डिंग टू लेफ्ट हैंड साइड, पहले B प्लस C कर लो, B प्लस C, B प्लस C मतलब अ वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम टेल ऑफ B एंडिंग एट हेड ऑफ C, मतलब P से S। दिस इज वेक्टर, लेट अस से R1 बार विच इज B प्लस C। ओके, तो ये इसको मैं बोलता हूँ R1 बार। अब क्या करोगे, अब A और R1 बार को ऐड करोगे, A और R1 बार को ऐड करोगे, मतलब फॉर द टाइम बीइंग एक काम करते हैं, इसको तो हम रखने ही वाले हैं। What I will do is, just because I will need this again, साइड में कर लो इसको। Good. Now your focus is on A and R1. What is the resultant? Resultant starts from O and goes here. तो ये आ गया आपका R bar, right? Good. तो फाइनली O से S तक। Now let us forget about this. अब अगर आप पहले A और B को ऐड कर लेते, if you add A and B first, A and B, if you add A and B, resultant is O to Q, O to Q, ये आ गया आपका रिजल्टेंट O से Q। दिस इज नथिंग बट A बार प्लस B बार। अब अगर आप उसमें C बार ऐड करते हो तो O to S, तो इस केस में भी O to S आया, मतलब अल्टीमेटली लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब वेक्टर एडिशन ओबेज एसोसिएटिव लॉ। गुड, हो गया। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटिव, लेकिन वो होता है वेक्टर प्रोडक्ट में। अभी तक हम ऐड ही कर रहे हैं, प्रोडक्ट की बात नहीं की, वी आर ओनली एडिंग, राइट? यहां तक क्लियर? देन सो फार
हमने वेक्टर्स को ऐड किया था। वेक्टर को ऐड करना मतलब रिजल्टेंट फाइंड करना, और रिजल्टेंट फाइंड करना मतलब दो वेक्टर का कंबाइंड इफेक्ट देखना। ए बार प्लस बी बार, दोनों को उड़ा दो, आर बार, है ना। रिजल्टेंट वेक्टर इज अ सिंगल वेक्टर which gives you same effect as that of combine all the vectors combined together। तो इसका उल्टा प्रोसेस भी होता है। इसका उल्टे प्रोसेस को बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, splitting of vectors, basically splitting of vectors into two components or three components। हमको मैक्सिमम 3 कंपोनेंट्स तक है, राइट। वन लिमिटेशन पहले समझ लेते हैं, फिर लिमिटेशन की बात करते हैं। इमेजिन हमारे पास एक वेक्टर था आर बार, तो लेट अस टेक अ वेक्टर आर बार। अब ये जो वेक्टर है आर बार, यू आर सपोज टू रिजॉल्व मतलब स्प्लिट इनटू कंपोनेंट्स। एडिशन, ये जो प्रोसेस है ये दो वेक्टर्स को कंबाइन करके सिंगल वेक्टर बनाने का प्रोसेस है। रेजोल्यूशन जो है ये एक वेक्टर के टुकड़े करने का, स्प्लिट करने का प्रोसेस है। तो दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ओके, सो नाउ व्हाट हैपेंस इज इन दिस केस, सबसे पहले let us take this vector to start from O and then let us say goes to S। ये y axis, this is x axis। So the first thing that you need to do is drop perpendicular। S point से x axis पे perpendicular drop करो। So if you drop a perpendicular here S से x axis पे, तो let us call this as some point, I don't know what, let us say D। तो ये जो OD हो गया, ये हो गया x component of R, और ये जो ds है इट इज y कंपोनेंट ऑफ r। तो O to D is x and D to S is y कंपोनेंट ऑफ r। ओनली लिमिटेशन, जब आप ऐड कर रहे थे दो वेक्टर्स को, यू सी हियर, या फिर मैंने बाकी एग्जांपल भी लिए हियर, a बार एंड b बार, व्हेन यू आर एडिंग, तो a बार और b बार परपेंडिकुलर होंगे ही, ऐसा कुछ नहीं है। These two components, these two vectors were not perpendicular। So while adding, मतलब while combining two vectors and forming a single vector, we are not worried about अगर दोनों perpendicular है या नहीं है। But when resolving, as far as your syllabus is concerned, up to 12th, first year engineering में इसके आगे का, up to this point, when you resolve, you obtain two vectors, two component vectors which are perpendicular। ओके, इस ऐसे कंपोनेंट्स को जो एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं उसको बोलते हैं कार्टेशियन कंपोनेंट्स। तो अगर कहीं पे ऐसा कार्टेशियन कंपोनेंट्स वर्ड आ गया तो डोंट वरी, दे आर टेलिंग यू कि Rx और Ry दे आर परपेंडिकुलर। वेरी गुड। नाउ गोइंग बैक टू यूनिट वेक्टर्स। ये जो यूनिट वेक्टर था, आई टोल्ड यू दे आर नॉर्मली यूज्ड टू स्पेसिफाई डायरेक्शंस। तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो डायरेक्शन होता है उसको बोलते हैं आई कैप। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स इज आई कैप एंड द डायरेक्शन ऑफ वाई इज जे कैप। तो जो आर बार का एक्स कंपोनेंट था, मैंने बार लिखा नहीं, उसके ऊपर लिख दो आर एक्स बार, और ये आ गया आर वाई बार। नाउ यू कैन राइट डाउन आर बार इक्वल टू आर एक्स बार प्लस आर वाई बार, or you can write down Rx I cap plus Ry j cap। Very good। So you have R bar as Rx I cap plus Ry j cap। अब अगर आपको R वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अगर आपको R वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना है इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स Rx एंड Ry, तो आपको ऑलरेडी पता है कि हाउ डू यू राइट डाउन a square plus b square plus 2ab cos theta, मतलब अंडर रूट ऑफ rx square plus ry square plus 2rx ry cos of 90, क्योंकि rx और ry में एंगल था cos 90 is cos 90 is 1। वेरी गुड। न्यू रूल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, cos 90 is 0। तो अब यहाँ पे जब स्क्वायर करोगे तो यू विल गेट आर स्क्वायर इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर प्लस, बट वी आर ह्यूमंस, वी आर सपोज टू यूज स्मार्ट ट्रिक्स। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, खत्म। आर स्क्वायर आर एक्स स्क्वायर प्लस, हाँ तो क्यों यूज करना है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos theta? नो, दिस इज हाउ यू गेट।
राइट। तो अगर आपको r चाहिए तो स्क्वायर रूट rx square plus ry square. Now this is when you have two components x and y. पर एक वेक्टर को आप 3 कंपोनेंट में भी डिवाइड कर सकते हो. This vector, I mean this, I don't know, stick. This stick, okay. तो ये जो स्टिक है, अगर इसको मैं बोर्ड के प्लेन में दिखाता हूं तो इट इज अ 2 डायमेंशनल वेक्टर, दो ही कंपोनेंट rx and ry. But if I show it here, rx, ry, rz, so it will have 3 components. So if you have 3-dimensional vector plus rz square, तो ऐसा ही आता है, right? So you have so far resolved vectors into 3 components which are Cartesian, right? Now addition हो गया, अब multiplication. Addition of 2 vectors is only possible when the 2 vectors are of same type. Multiplication में ऐसा कुछ नहीं है. You can multiply 2 vectors of the same type or different type. In fact in physics you will come across various quantities of different types, vector quantities. Force into displacement. What is force into displacement? Work. वो work अभी 11th 12th में आने के बाद you don't write force into displacement, you write force vector dot displacement vector. So force is another physical quantity, displacement is another physical quantity. तो आपको multiplication जब आप करते हो vectors का, तो you don't have to worry whether these two are of the same type or not. Okay, they're of the same type, कोई बात नहीं. Displacement dot displacement will be displacement square, still a valid physical quantity. Displacement और force का dot product लिया तो work done still is a physical quantity. तो अब जब आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करोगे, there are two types. एक इमेजिन, मान लो मेरे पास एक वेक्टर है a बार, दूसरा है b बार. इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो सिर्फ एक नंबर मिला, ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन ऑब्टेन्ड. और अगर मैंने इन्हीं दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया और मुझे एक मैग्नीट्यूड के साथ एक डायरेक्शन भी मिला. You multiply 2 vectors, you get only magnitude. You multiply 2 vectors, you get magnitude and direction, right? तो जब सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलता है उसको क्या बोलते हैं? स्केलर. ओनली मैग्नीट्यूड मींस स्केलर, तो इसको बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट. एंड हियर यू गेट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मतलब वेक्टर रिजल्टेंट इज अ वेक्टर, तो वेक्टर प्रोडक्ट. ओके, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट दो अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स है. अगर हमको बताएंगे कैसे, हाउ डू यू शो दोनों प्रोडक्ट है, तो यू हैव टू कम अप विथ सम नोटेशन. तो स्केलर प्रोडक्ट को डिनोट करते हैं डॉट से और इसको करते हैं क्रॉस से. तो इसको एक नाम और मिल गया, डॉट प्रोडक्ट, इसको मिल गया क्रॉस प्रोडक्ट. ओके, सो बाय डेफिनेशन a bar dot b bar is magnitude of a, magnitude of b into cosine of smaller angle between the two vectors. Why smaller angle? अभी दो वेक्टर्स अगर मेरे पास है, if I have a vector and b vector, a bar and b bar, if I have this, तो अभी मैं ये भी एंगल मेजर कर सकता हूँ या फिर मैं बाहर का मेजर कर सकता हूँ, राइट? हाँ, तो a bar dot b bar मतलब scalar product or dot product of two vectors is defined as the product of magnitude of one vector with another magnitude of another vector and cosine of smaller angle between them, right? Here a bar cross b bar is defined as ab sin theta. Theta is smaller angle between the two vectors. यहाँ पे अगर n कैप नहीं लिखा, मतलब यू आर सेइंग कि स्केलर प्रोडक्ट भी मैग्नीट्यूड है और वेक्टर प्रोडक्ट भी मैग्नीट्यूड है, तो फिर अलग अलग नाम क्यों दिया? दोनों मैग्नीट्यूड थे.
So there is some direction. We'll come to direction also. We'll talk about direction. यहाँ तो direction का कोई problem नहीं है. So in this case, if I take A bar, if I take B bar, तो जो भी जिसको A bar बोलना है बोलो, जिसको B bar बोलना है B bar बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता. This is B bar, and then there is some angle between them. Now in this case, A bar cross B bar AB sin theta, ये तो पता है, n cap, और resultant of two vectors is a vector. मतलब यहाँ जो रिजल्टेंट, यहाँ जो नया वेक्टर बनेगा, नाम जो चाहो वो दो, C बार बोलो, D बार बोलो, R बार बोलो, जो भी नया वेक्टर बनेगा उसका डायरेक्शन कैसे देंगे? मैग्नीट्यूड तो मिल गया ना, मैग्नीट्यूड इज AB sin थीटा. तो डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल. So if thumb represents A bar, index finger B bar, so this middle finger represents direction. If you take A bar towards B bar, A bar cross B bar, A bar cross B bar मतलब clockwise rotation, right? तो अभी इंडिया में क्या होता है, इसको राइट हैंड स्क्रू रूल क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर आपको स्क्रू टाइट करना है तो यू रोटेट इट क्लॉकवाइज, मतलब आप A को B के पास ले जाओगे. अगर मैं A vector is my thumb and B is somewhere over here. If I take A towards B, thumb towards index finger, then resultant is upwards. Okay, so resultant is upwards. मतलब basically in this case A bar cross B bar is here, ऊपर की तरफ. Okay, so this is A bar cross B bar and this is direction n cap. Right? अब उल्टा भी है. उल्टा मतलब B bar cross A bar. So if you do B bar cross A bar मतलब स्क्रू को लूज करना है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब स्क्रू को लूज करना है, मतलब अब रिजल्टेंट इधर आए, नॉट इन डायरेक्शन ऑफ मिडल फिंगर बट अपोजिट टू इट. तो व्हेन यू डू B bar cross A bar, resultant goes down. मतलब basically it is here. So this is B bar cross A bar. This actually is minus n cap. Clear? अगर ये समझा है तो प्रॉपर्टीज समझ में आएंगे. So be it scalar product, be it vector product, they have certain properties, around 7 to 8 properties. Okay, and those properties we will be doing in the next class.